The next topic in data mining is the data mining tools. The first tool is Orange, which has elegant and concise scripting and also be run in an ETL GUI mode that is written in the Java language. Next tool is R. It is a programming language and the software environment was statistical computing and data mining and graphics. Third one is the RapidMire that has a lot of functionalities. It is polished and has a good connectivity. It provides the graphical user interfaces for the interactive prototyping command lines mode for the automated large scale applications. ये जो टूल्स हम बता रहे हैं दीज आर द सॉफ्टवेयर्स डाटा माइनिंग सॉफ्टवेयर जो वेरियस प्लेसेस पे हम यूज़ करते हैं. सो दीज आर रिटन इन एनी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज or in any language like the Orange is written in a Java language. It also written in a Python language. So it provides a graphical user interfaces also. The fourth type of tool is Vika. It is a suite of machine learning software application which is written in a Java programming language. Next one is OpenNN, which is the open neural network library which is used for the neural networks. Next one is Skitlearn. It is an open source machine learning library which is written in the Python programming language. Next is MOA. MOA is a massive online analysis. It is a real-time big data stream mining with the concept of drift tool in the Java programming language. Next one is Gate, a natural language processing and language engineering tool. Next one is MEPX. This is a cross-platform tool for the regression and the classification programs based on a genetic programming variant. And last one is MLFlex, a software package that enable user to integrate with the third-party machine learning packages written in any language. And last, it execute the classification analysis in parallel across the multiple computing nodes and produce the HTML reports of classification results. So MLFlex क्या एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जो किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है और उस लैंग्वेज में जो भी हमने सॉफ्टवेयर एक प्रोजेक्ट तैयार किया है उसे हम इंटेग्रेट कर सकते हैं विद द अनदर प्रोजेक्ट रिटन इन एनी लैंग्वेज. फॉर एग्जाम्पल इट प्रोड्यूसेस द HTML रिपोर्ट्स फॉर द रिजल्ट्स. और दीज आर द टूल्स, डाटा माइनिंग टूल्स. और नेट पे आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे बट आपने क्या करना है कि आपने इन ये 10 याद कर लो या फिर इनमें से कोई 6 या 7 याद कर लो फॉर द एग्ज़ाम पर्पस. सो नेक्स्ट इसमें और क्या टूल्स हो सकते हैं लाइक द सॉफ्टवेयर ओरेकल हम यूज़ करते हैं. तो ओरेकल के लिए डाटा माइनिंग ओरेकल जो है वो एक टूल है, दैट इज़ ओरेकल डाटा माइनिंग. सो these are the tools. And next topic is the data mining techniques. Data mining techniques are divided into two parts. First one is predicting and second is descriptive. तो first predicting में आता है classification, regression, outer detection and prediction. Descriptive में clustering आ जाता है, association rules आ जाता है, sequential pattern and the neural network. So these are the two types. First प्रेडिक्टिंग में फर्स्ट टाइप है क्लासिफिकेशन. सो क्लासिफिकेशन क्या मतलब है कि जो भी डाटा हम फैच कर रहे हैं फ्रॉम द डाटा वेयर हाउस और द वेरियस डाटा सोर्सेज उसको क्लासीफाई करना इनटू द डिफरेंट क्लासेस. सो फॉर एग्जांपल के प्रोग्रामिंग में जैसे हम करते हैं कि इंटीजर टाइप्स के जो होते हैं इंटीजर वेरिएबल वो अलग हैं. और फॉर एग्जांपल डाटाबेसेस की एग्जांपल ले तो कॉलेज का जो डाटा है CSE डिपार्टमेंट का अलग रहेगा, वो एक डिफरेंट क्लास है. बट मैकेनिकल का डाटा जो है वो अलग रहेगा, वो अनदर क्लास है. सो क्लासिफिकेशन उनकी करनी टू रिट्रीव the important and the relative information about the data and metadata. For example, the classification of data mining framework as per the type of data handle such as multimedia, spatial data, text data. Text data अलग रहेगा, multimedia data, videos, audios, pictures जो है वो अलग रहेंगी. Classification of data mining framework as per the database involves such as the object oriented database, transactional database, relational databases. Clear? Next, second टेक्निक इज़ क्लस्टरिंग. क्लस्टरिंग का क्या मीनिंग है कि एक हमारे पास ग्रुप है
उसको डिवाइड करना, डिवाइड इस हिसाब से करना कि उस ग्रुप में जो सिमिलर एलिमेंट्स हैं उनको अलग करना और डिसिमिलर एलिमेंट्स हैं उनको अलग करना। जो सिमिलर बन गए उनका एक ग्रुप बन जाएगा, डिसिमिलर का एक ग्रुप बन जाएगा। जो वो ग्रुप बना उसको हम क्लस्टर बोलते हैं। सो it is used to find the appropriate grouping of elements for a set of data that is used to identify the data that are like each other, recognize the difference and similarities between the data, and relationship among the data is recognized by the bottom up approach. Clear? Next one is regression. Regression is used to identify and analyzing the relationship between the variables. This is used to identify the likelihood of a specific variable and given the presence of other variables. एक वेरिएबल है उसको कंपेयर करना विद अनदर वेरिएबल्स एंड रिलेशनशिप उनकी फाइंड आउट करना. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ प्लानिंग एंड मॉडलिंग. Next, fourth one is the association rule. It helps to find the association between the two or more items or the elements. It discover a hidden pattern within the data set. Fifth one is the outer detection. It refers to the observation of the data items in the data set which do not match an expected patterns or expected behavior. So outer detection का क्या मीनिंग है कि जो भी आपने ऑब्जर्वेशंस की है, जो अपने रिसोर्सेज को फैच किया है, फाइंड आउट किया है, उसके अकॉर्डिंग आप उस पर इम्प्लीमेंटेशन करते हो, सर्च करते हो, देन जो आपके पास आउटकम्स आ जाती है, अब ऑब्जर्वेशन आ जाती है जो आपने ऑब्जर्व किया उनमें से, विच डू नॉट मैच द एक्सपेक्टेड पैटर्न, जो आपको आउटपुट चाहिए उसके साथ आपने मैच करके देखना विद द आउटर डिटेक्शन. It can be used in variety of domains such as intrusion detection, fraud or fault detection etc. मीन कि अगर कोई आपके पास डाटाबेस है, आपका डाटा जो है कोई इंट्रूडर जो है, अनदर पार्टी जो है, थर्ड पार्टी जो है वो मिसयूज़ कर रही है और उसमें कोई चेंजेस ला रही है, तो आप जो ओरिजिनल डाटा है और जो आफ्टर डेट अपडेटेड डाटा है उसके साथ मैच करके देखोगे अगर कोई फॉल्ट दिख रहा है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द आउटलेयर एनालिसिस और आउटलेयर माइनिंग. So sixth point is the sequential pattern, which helps to discover or identify the similar patterns or trends in transaction data for a certain period. It is similar to the clustering purpose, but it only discover the similar patterns. मेन जो similar patterns होंगे जो कुछ टाइम के लिए appear होंगे. Next one is the prediction. It is a combination of other data mining techniques like the sequential patterns, clustering, classification. It analyzes the past events or the instances in a right sequence for preceding a future event. And last is neural network, which is represented as a layered set of interconnected processes which are also known as the neurons. न्यूरॉन जैसे हम ब्रेन में न्यूरॉन्स की बात कर लेते हैं उसके साथ कंपेयर करते हैं. Each node has a weighted connection to the several other nodes in the adjacent layers. हर नोड जो है उसका अपना एक वेट होगा. And individual nodes take the input received from the connected nodes and use the weighted together to compute the output values. इसमें मेन क्या है कि जैसे कि हमारे पास एक ग्रुप बना था क्लस्टर्स में, उसमें ग्रुप में सिमिलर आइटम्स थी, सिमिलर एलिमेंट्स थे. तो सिमिलर आइटम्स क्या है, जो सिमिलर एलिमेंट्स क्या है यहाँ पर, न्यूरॉन्स. तो हर नोड का क्या होगा, हर एलिमेंट का क्या होगा, एक वेट असाइन होगा और कुछ इनपुट गिवन होगी. तो वेट एंड इनपुट का जो कॉम्बिनेशन है उससे हम एक फाइनल आउटपुट जो है वो तैयार करते हैं इन द न्यूरल नेटवर्क. नेक्स्ट आर द बेनिफिट्स ऑफ डाटा माइनिंग. द बेनिफिट्स आर these are used in direct marketing purposes. ट्रेंड एनालिसिस में यूज़ करते हैं. ट्रेंड एनालिसिस में क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि मार्केट प्लेसेस में इसकी एक एडवांटेज है कि ये कॉस्ट को रिड्यूस करने में हेल्प करता है एंड टाइमली मार्केटिंग में, ऑनलाइन मार्केटिंग जो सेलिंग हमारी होती है उसमें बेनिफिशियल होता है. डाटा माइनिंग टेक्निक हेल्प द कंपनी टू गेट नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन. इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन न्यू सिस्टम एज वेल एज एग्जिस्टिंग सिस्टम. दोनों में हम इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. It provides the faster process of data.
which makes it easy for the users to analyze the huge amount of data in less time. कम टाइम में हम ज़्यादा अमाउंट ऑफ डाटा को हैंडल कर सकते हैं. It helps with the decision making processes. फ्रॉड डिटेक्शन में हम इसे यूज़ कर सकते हैं. दिस help to discover which insurance claims, cellular phones or credit card purchases are likely to be fraudulent. And forecasting in financial marketing में use कर सकते हैं. These are used to help the model financial markets. So disadvantage है next कि misuse कर सकता है कोई भी information को. थर्ड पार्टी जो है, अगर आप सेम कंपनी में हैं तो कोई भी पर्सन जो है वो आपकी इंफॉर्मेशन को या कंपनी की इंफॉर्मेशन को पैसों की वजह से सिक्योरिटी इश्यूज़ जो है, सिक्योरिटी हमने कम प्रोवाइड की है तो उसको ईजिली वो सेल कर सकता है, मिसयूज़ कर सकता है और थर्ड पार्टीज उससे अपना बेनिफिट ले सकते हैं. तो ये एक डिसएडवांटेज है डाटा माइनिंग की. तो इसमें एग्जांपल क्या है, द अमेरिकन एक्सप्रेस हैज सोल्ड द क्रेडिट कार्ड परचेजेस ऑफ देयर कस्टमर्स टू द अनदर कंपनीज को परचेज को सेल कर दे. अगर मैनी डाटा माइनिंग सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं वो डिफ़िकल्ट टू ऑपरेट होते हैं, तो मेन जो है एक्सपीरियंस पर्सन्स या ट्रेनर्स ही उनको हैंडल कर सकते हैं. प्राइवेसी इश्यूज़ हो सकते हैं जो मिसयूज़ में कहा, सिक्योरिटी इश्यूज़ हो सकते हैं. डिफरेंट टूल्स जो होते हैं, डिफरेंट एल्गोरिथम्स हम यूज़ करते हैं. सो डिफरेंट टूल्स के लिए डिफरेंट एल्गोरिथम डिज़ाइन करना एक डिफ़िकल्ट टास्क है. नेक्स्ट इज़ ये टेक्निक्स जो है वो एक्यूरेट नहीं होती. फॉर एग्जांपल क्लस्टरिंग की बात करें तो उसमें क्या है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स गिवन है, तो उनमें से हम एक टाइम पे एक ग्रुप फाइंड आउट कर लिया, दूसरा डिसिमिलर अलग कर दिए. बट कोई ऐसा एलिमेंट हो सकता है जो दोनों ग्रुप्स में ना एंटर हो, तो वो क्या है, रिज़ल्ट जो है वो कंसिस्टेंट नहीं आ पाता. तो नेक्स्ट आता एप्लीकेशंस. फर्स्ट कम्युनिकेशन पर्पस में हम यूज़ कर सकते हैं. इंश्योरेंस में यूज़ करते हैं विच हेल्प्स द इंश्योरेंस कंपनी टू प्राइस देयर प्रोडक्ट प्रॉफिट्स एंड प्रमोट द न्यू ऑफर्स टू देयर न्यू एंड एग्जिस्टिंग कस्टमर्स. एजुकेशन में यूज़ कर सकते हैं कि एजुकेटर्स यूज़ करते हैं टू एक्सेस द स्टूडेंट डाटा और predict the achievement levels, find the student or the group of student which need extra attention. फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्टूडेंट है जो मैथ्स में वीक है, जहाँ किसी भी सब्जेक्ट में वीक है, तो हम इस प्रोसेस के थ्रू उनको हेल्प कर सकते हैं विद द प्रोवाइडिंग द एक्स्ट्रा अटेंशन. नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते हैं. डैट कैन प्रोडिक्ट वेयर एंड टेयर ऑफ प्रोडक्शन एसेंस. दे कैन एंटिसिपेट द मेंटेनेंस विद हेल्प which helps them to reduce them to minimize the downtime. बैंकिंग में यूज़ कर सकते हैं. क्रेडिट कार्ड इश्यूज़ होते हैं लोन्स वगैरह में. क्राइम इन्वेस्टिगेशन में पता कर सकते हैं कि कौन सा क्राइम कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, कितने टाइम पे था. बायो इन्फॉर्मेटिक में यूज़ कर सकते हैं बायोलॉजिकल डाटा को एक्सेस करने के लिए. ई कॉमर्स में यूज़ कर सकते हैं. सुपरमार्केट्स में, ऑनलाइन शॉपिंग्स में हम यूज़ कर सकते हैं. तो दीज आर ऑल द डाटा माइनिंग एप्लीकेशंस.